جب رضاعت کی داستان اختتام تک پہنچ گئی اور طفولیت کی داستان شروع ہونے لگی تو دستور کے مطابق جب بچوں کا دودھ چڑھایا جاتا تو عورتیں انہیں واپس لے جا رہی تھی، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اس مبارک بچے کو واپس کرنے پر رضامند نہ تھی اور یہ نہ چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے خاندان کو جو خوشحالی نصیب ہوئی ہے اس سے محروم ہو جاؤں، لیکن رضاعت ختم ہونے کے بعد مجھے حق نہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھوں، تو میں نے سوچا کہ کس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کر کے اس مبارک بچے کو کچھ وقت اور اپنے پاس رکھ کر مزید برکات حاصل کر سکوں۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چرواہا فرماتا ہے کہ جب وہ وادی سرر پہنچے تو حبشہ کے گروہ کو ملے، انہوں نے ان کے ساتھ رفاقت اختیار کر لی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت اور آنکھوں میں سرخی دیکھی۔ انہوں نے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے؟ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم ان کی آنکھوں کو تکلیف نہیں، بلکہ یہ سرخی ہمیشہ سے ان کی چشمان مقدسہ سے الگ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ نبی ہے۔ یہ واقعہ وادی سرر میں پیش آیا۔ وادی سرر وہ بابرکت جگہ ہے جس کے بارے میں روایت میں ذکر ہے کہ یہاں ایک سایہ دار درخت ہے جسے شجرۃ السرح کہا جاتا ہے۔ یہاں 70 انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور ان میں ایک نبی علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں آرام فرمایا اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور پھر اس درخت کے لیے بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول فرمائی۔ اس لیے اس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے اور اس سے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ موطا امام مالک میں ذکر ہے کہ محمد بن عمران الانصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک بڑے درخت کے نیچے ٹہر گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا آپ اس درخت کے نیچے کیوں ٹہرے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس کی سائے کی وجہ سے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ مینا کے ان دو پہاڑوں کے درمیان ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا تو وہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے جس کو وادی سرر کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک درخت ہے جس کے نیچے 70 انبیاء علیہ السلام کی ناک کاٹی گئی ہے، یعنی وہاں ان کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن عبد البر نے موطا کی شرح التمہید جلد نمبر 13 صفحہ 67 میں لکھا ہے وفی هذا الحدیث دلیل علی التبرک بمواضع الانبیاء والصالحین ومقاماتہم ومساکنہم، کہ اس حدیث میں انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے مقامات، رہنے والی جگہوں اور مساکن یعنی رہائش گاہوں سے تبرک کا ثبوت ہے۔ اسی طرح حافظ جلال الدین السیوطی نے سنن النسائی کی شرح جلد نمبر 5 صفحہ 249 میں لکھا ہے یعنی انہم اولدو تحتہا فہو یصف برکتہا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس درخت کے نیچے انبیاء علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کی برکت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرقانی نے شرح الزرقانی علی الموطا میں جلد نمبر 2 صفحہ 601 میں لکھا ہے فیہ التبرک بمواضع النبیین، اس حدیث میں انبیاء علیہ السلام کے کیا گاہوں سے تبرک کا ثبوت بھی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن عبد البر نے موطا کی شرح الاستذکار جلد نمبر 4 صفحہ 406 میں لکھا ہے ھذا الحدیث دلیل علی التبرک بمواضع الانبیاء والصالحین ومساکنہم، اس حدیث میں انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے قیام گاہوں
और रिहाइशगाहों से तबर्रुक का सबूत है। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी वालदा माजिदा के पास पहुंच गए। जब उन्होंने अपने नूरी नजर और सुकून कल्ब को देख लिया तो हमने अर्ज किया कि अपने नूरी नजर को इस साल हमारे पास रहने दे। अल्लाह की कसम हम बार बार इसरार करते रहे हत्ता कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त मंजूर की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे साथ भेज दिया। जब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से वापस ला रही थी तो वो जुल्हिजाज के मुकाम से गुजरी। वहाँ एक हजली कियाफशनास था जिसके पास बच्चे लाए जाते थे। जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुर्खी और शानों के दरमियान मोहर नबूवत देखी तो वो चीखने लगा कि ए गुरोह अरब, इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना ये तुम्हारे अहले दीन को कत्ल कर देगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा, इसका अमर आप पर गालिब रहेगा। फिर ये कियाफशनास इसी वक्त दीवाना हो गया, इसकी अकल ज़ाहिर हो गई और हालत कुफर में मर गया। और हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां से निकलकर बाफियत अपने घर पहुंच गई। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले जाते थे। आप देखते थे कि बच्चे खेल रहे होते मगर आप इनसे इज्तिनाब करते। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर नहीं जाने देती। एक दिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाफिल हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अपनी बहन हजरत शैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकले। जब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रज़ाई बहन हजरत शैमा के साथ पाया। उन्होंने कहा इस गर्मी में उन्हें लेकर आई हो तो हजरत शैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा अम्मी जान, मेरे इस भाई को गर्मी नहीं लगती क्योंकि बादल इनके सर पर साया करता है। जब ये रुकते हैं तो बादल भी रुक जाता है और जब ये चलते हैं तो बादल भी चलने लगता है। तो हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा क्या ये सच है? तो हजरत शैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कसम उठाकर कहा अल्लाह की कसम ये सच है। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया दिन के वक्त मेरे भाई किधर चलते हैं जो शाम तक नहीं होते। तो मैंने अर्ज किया कि आपके भाई हमारे बकरियां चराने जाते हैं और रात को वापस आते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू भराए और फरमाने लगे अम्मी जान, मैं अकेला यहाँ क्या करूं? आप कल मुझे भी इनके साथ भेज दे। मैंने कहा क्या तुम्हें ये पसंद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मुझे पसंद है। जब सुबह हुई तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेल और सुरमा लगाया, कमीज पहनाई और एक यमनी तावीज गले में डाल दिया ताकि नजर बद से महफूज रहे। फिर हाथ में एक लकड़ी दी और वो अपने भाइयों के साथ गए। वो खुश होकर जाते और बरकत के साथ वापस आते। इसमें तकरीबन 2-3 महीने गुजर गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ गए। दोपहर के वक्त इनका भाई द्वमरद उल्टा हुआ आया और कहा मिजान मेरे भाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लो। तो हजरत हलीमा ने पूछा उन्हें क्या हुआ? तो उसने बताया कि 2 शख्स आए और उन्होंने कुरैशी भाई यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाकर इनके सीना को चीर दिया और इसमें से कुछ निकाला और अब कुरैशी भाई जमीन पर लेटे हुए हैं। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ये सुनकर मैं और मेरा शौहर फौरन उस तरफ दौड़ने लगे। जब हम पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की चोटी पर 4 जानों खुशगवार हालत में बैठे थे। मुबारक आंखों से आसमान की तरफ देख रहे थे, तबस्सुम और दुहक फरमा रहे थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुकी और आंखों के दरमियान बोसा लेने लगी। मैंने कहा मेरी जान आप पर कुर्बान हो, आपको क्या हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली के साथ बेहतरीन जवाब इनायत फरमाया खैरन या उम्माहु
खैर है मेरी अम्मी जान। और फिर फरमाने लगे, मैं एक जगह खड़ा था कि दो आदमी मेरे पास आए। इनमें एक के हाथ में चांदी का लोटा था, दूसरे के हाथ में सब्ज जमरुद या सोने का तस्त था जो बर्फ से भरा हुआ था। उन्होंने मुझे पकड़ा और पहाड़ की चोटी पर ले गए और मुझे बहुत हल्के अंदाज में लिटाया। मेरा सीना शक किया, मैं उन्हें देख रहा था, मुझे कोई दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हो रहा था। फिर उसने मेरे पीठ में अपना हाथ डाला, मेरे पीठ से एक टुकड़ा बाहर निकाला, इसे बर्फ से धोया, अच्छी तरह धोकर उसे वापस उस जगह लुटा दिया। एक रिवायत में इसी तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जमीन पर लेटाया, दिल बाहर निकाला, उसे शक किया, इससे सियाह टुकड़ा बाहर निकाला और अर्ज किया, या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शैतान का हिस्सा है। फिर उन्होंने सीने अकदस उस चीज से भर दिया जो इनके पास थी, फिर नूर से मोहर नबूवत लगाई। अब भी मैं अपनी रगों और जोड़ों में मोहर नबूवत की ठंडक महसूस कर रहा हूँ। दूसरा शख्स उठा, उसने कहा, एक तरफ हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो हुक्म दिया था तुमने उसे पूरा कर दिया। वो मेरे करीब हुआ, अपना हाथ मेरे सीने से लेकर नाप तक फेरा, वो शक इज़्न इलाही से दुरुस्त हो गया। एक रिवायत में है कि फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अच्छी तरह उठाया। पहले शख्स ने कहा, इनको इनकी उम्मत के 10 अफराद के साथ वजन करो। उन्होंने मेरा वजन किया तो मेरा वजन इन 10 अफराद से बढ़ गया। फिर उसने कहा, अब इनका वजन 100 अफराद के साथ करो। उन्होंने मेरा वजन किया तो मेरा वजन इनसे भी बढ़ गया। फिर उसने कहा, अब इनका वजन 1000 अफराद के साथ करो। उन्होंने फिर मेरा वजन किया तो मेरा वजन इनसे भी बढ़ गया। फिर उसने कहा इनको छोड़ दो, अगर सारी उम्मत के साथ इनका वजन करोगे तो फिर भी इनका वजन बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने मुझे सीने के साथ मिलाया, मेरे सर का बोसा लिया, मुझे आंखों के दरमियान चूमा, फिर कहा, या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खौफजदा ना हो। अगर आप जान लेते कि आपके साथ किसी भलाई का इरादा किया गया है तो आपकी आंखें ठंडी हो जाती। जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह खसाइस सुगरा में फरमाते हैं कि ताजुद्दीन इब्न सुबकी ने तौशीह में लिखा है कि मेरे वालिद शेखुल इस्लाम काजी तकीउद्दीन असुबकी से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को जब शक किया गया और इससे एक सियाह लोतला निकाला और फरिश्ते ने कहा कि ये शैतान का हिस्सा है, आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? तो मेरे वालिद माजिद ने जवाबन फरमाया कि ये गोश्त का वो टुकड़ा है जिसे अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों में पैदा फरमाया है, और जो कुछ शैतान इसमें डालता है ये उसे कबूल करता है। तो इस हिस्से को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक से निकाल दिया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अनवर मुबारक के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं जो वसवसा शैतानी को कबूल करे। तो इस पर मैंने सवाल किया कि अल्लाह ताला ने इस शैतानी वसवसा कबूल करने वाले हिस्से को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक में क्यों पैदा फरमाया? तो आपने फरमाया कि ये इंसानी अज्जा में से एक जुज है और खिलकत इंसानी की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने इसे पैदा फरमाया, और ये इंसानी खिलकत की तकमील के लिए ज़रूरी था, और बाद में अल्लाह ताला ने अपने ख़ास इनायत से अलहदा फरमा दिया। इब्न सुबकी फरमाते हैं कि मेरे भाई ने मेरे वालिद साहिब को इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा कि इन पर अनवारात इलाही की बारिश नाजिल हो रही है। तो इनके दिल में आया कि इनके वालिद पर अनवारात व बरक़ात इस मुबारक बहस की बरकत से हैं।